believe in this fact that nothing is impossible. The way you introduced me that I've done a show, a television show for 8 long years, and yes, it's not easy to break that stereotype image and transform yourself. But I took this decision. One thing I learned from television, I'm just a show old, and I did it for 8 long years. But the only thing I learned from this industry is you just can't get comfortable. You have to keep transforming yourself and presenting yourself to everyone and give them space every time so that they accept you. And that's the reason I'm here today. Thank you so much. Thank you. First time someone is calling me angel. Not even the students who work under me have said that. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, WPR, for considering me an achiever. It's really scary because we don't really work with the intention of getting this pat on our back. And it's really nice to have that pat on the back time and again. I remember your words. We always thank our parents, we thank God, and we thank our loved ones. We also thank the fans who make us who we are, because our work reaches out to them, and they are the ones who push us into reading their love even more. So, thank you guys. Actually, I'm going to dedicate this to all the fans who give us this space. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
thank you very much. This is the most embarrassing moment of my life. Secondly, I want to congratulate Simran for doing such a fabulous job. Really, give me the round of applause for your thank you, sir. I've been a big fan. I remember being a young boy, listening to India playing West Indies, and I remember the matches used to come at the end of the night, and we used to watch it, hear it on the radio, and I remember all the exploits and you should be fans. That's great. Honestly, when I got a call for this award, I thought there was a mistake. So I was like, Achievers Award? I'm like, what the hell have I achieved? I mean, honestly, and I'm not trying to be modest, because I think a lot of you would probably relate to it in terms of the creative people. It's not about achievement, really. It's about pushing the limits, reaching your potential, how much better you can do. It's not about how good you are, but how better you could have been. So for me, the glass is eternally half empty, and I'm just trying harder and harder to make it as much as I can, whatever God's given me. I remember my first film released about 20 years back, and before that I was a financial analyst in New York. I quit my job to follow my passion, and my parents didn't speak to me for 2 years. पढ़ना लिखना अगर यही करना था तो पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? So well, here I am. Apparently, I have achieved something, but I think my greatest achievement is Neelam agreed to get married to me. If there's anything I'm proud of, is being a husband and a father to a lovely daughter. And yeah, these are two achievements. This I do feel I love it. Thank you. I'm honored to be here this afternoon. We usually used to say evening, but for a change, this award function is in the afternoon, which means we get back home in the evening, which never happens. But I'm just extremely so delighted to be here with some people that have grown up watching ever since I was a child. Irshad bhai, आपके जो गीत हैं, रॉकस्टार का जो म्यूजिक है, पिछले 6 साल से ऐसा एक दिन गया नहीं है जब मैंने अपना मेकअप कराया और रॉकस्टार के बोल नहीं सुने. Thank you for the inspiration, sir. Genuinely the biggest fan. बहुत पसंद है मुझे आपकी लिखाई. Sandeep sir, I'm an actor today because I wasn't good enough to be a cricketer, a professional cricketer. My greatest inspiration is my sporting idols, and you're one of them for the way you conducted your career as a cricketer, as a coach, now a selector. Thank you. It's been wonderful to watch Sameer, and I think he's one of the very few, very articulate, very educated, always held himself with so much dignity. And I was just telling Hina that I hope both of us can be here after a 20-year-old long career and still be so humble about it, and choose to come here on a birthday, which I think is quite a big deal. Yes, we can sing again. And a lot of my contemporaries, I heard Hina, I've never had a chance to work with her, but she's a wonderful girl. Geeta ma'am, I've always watched you and admired you, and hopefully we get a chance to work one day. But all I'd like to say is that as artists, we are servants of the material which is served to us, and that's what we must do well. But I think as citizens of young India, as representatives of the industry we belong to, the entertainment and arts, I think we have a far greater responsibility, and which is to really be the change makers in the area we're working.
to be the trailblazers, to work for a more inclusive environment in our society, in our industry, and more importantly, when recognition like this sort of comes along. Thank you so much, sir. It tells you and it motivates you and encourages you that maybe you're on the right path, maybe you should keep doing something. And while I say this, I'd like to also quickly acknowledge, I think, one body which has been my hero in the last 1 month, I think the Supreme Court of India. It's passed some amazing, wonderful judgments. Section 377 has been scrapped. Sabrimala has been opened up to all of us, women and men, and I think that's a huge step. Decriminalization of adultery has happened. There are lots of views on it, but I think it's wonderful. It's an example for all of us that an organization, a body as old and as Supreme Court is moving with times and changing with times, which also tells us what we need to do in our career to continue coming here and getting these. So thank you so much for your time, and thank you for this wonderful afternoon, sir. Thank you. अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप जब किसी चीज़ की तरफ हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है जब वो आपकी मेहनत अप्रिशिएट होती है। और मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था मेरे शो के बाद कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं, लोगों को एक अलग नज़रिया दूं अपने आप को देखने का। और आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उसमें सक्सेसफुल हुई हूँ, क्योंकि तभी मेरे पास आज ये है और ऐसे कई अवार्ड्स हैं जो मुझे स्टाइल के लिए मिले। तो आई थैंक देम एक्टिंग और परफॉर्मेंस के लिए। अब जैसा तैसा भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो उसके लिए काफ़ी अवार्ड्स से मुझे आप लोगों ने प्यार दिया है। एंड नाउ विद दिस स्टाइल यू ऑल हैव अप्रिशिएटेड मी, सो आई विल कीप अप द गुड वर्क। और जैसे कि मैंने अंदर भी कहा कि ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आपको हर टाइम कुछ अलग करना है, नया करना है, ताकि आपको लोग प्यार करते रहें, सराहते रहें, अप्रिशिएट करते रहें। Something you're comfortable in, I think that is what style is all about. स्टाइल होता है जिसमें आप अच्छे भी दिखें, और सबसे ज़्यादा स्टाइल जो है मेरे लिए है कंफर्ट। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए जो आप पहन रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कभी भी उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उस आउटफिट को जो जितने ग्रेसफुली प्रेजेंट करना चाहिए शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। कुछ नहीं है, and palazzos and antique jewelry, nothing much I've done, बहुत ही simple रखा है, because I just wanted to be look elegant today. क्या हुआ है? अच्छा, एक्चुअली आप मुझे अभी बता रहे हैं तो मुझे पता चला है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। किसके बारे में हुआ है? ओह माय गॉड। देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत है। बाकी आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रीड अबाउट इट। शायद मैंने मिस कर दिया हो, देन ओनली आई कैन गिव अ टेक ऑन इट। बट अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आई थिंक वर्क प्लेस एक ऐसी जगह होती है काम को आप पूछते हैं, और जहाँ पर जिस चीज़ को आप पूछते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसा डेकोरम होना चाहिए कि हर कोई कंफर्टेबल फील करे। तो वो तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। आई कम्प्लीटली बिलीव इन इट। बहुत फॉलो करती हूँ, हर दिन देखती हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। क्या फीलिंग होती है जब आपके गाने, मतलब आपकी मेहनत हर किसी की जुबान पर होती है, जैसा कि आप कहते हैं आपकी एक दुनिया एक दुनिया है, और आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि एक दुनिया हर किसी की जुबान पर भी होती है। क्या फीलिंग होती है और एक अवार्ड? बहुत बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत बढ़िया। जैसा कि होता है कि आप काम करते जाते हैं, काम लगातार कर रहे होते हैं, और इन अवार्ड्स के ज़रिए आपके काम की रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है। और जब आपके काम की रिकॉग्नाइजेशन होती है तो आपको अच्छा तो लगता है। इन दिनों यार मेरी अभी लेटेस्ट पिक्चर तो 0 आने वाली है। भारत पे काम चल रहा है, और
सिद्धू विनोद चोपड़ा साहब की पिक्चर पे काम कर रहा है, तो कुछ पिक्चरें हैं जो काम कर रहा है, लेकिन लेटेस्ट 0 आने वाली है जितनी भी ये पिक्चरें हैं सब कुछ फ्यूचर में हमारा करने वाली इंशाल्लाह। कैसा रहा एक्सपीरियंस हीरो हार बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, अच्छा काम है, चल रहा है, इट्स ऑन। इस तरह के गाने देखेंगे आप जैसे यार अक्सर पिक्चरों में देखते हो उससे थोड़े से बेहतर। एंड इन दिनों जो एक प्रॉब्लम चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, जनता है नाना पाटेकर, आपने भी सुना होगा, तो क्या टिप होता है आपका, आपकी समाज में? या मेरा टेक ये होता है कि जब किसी के पास आर्ट होता है या किसी की कोई अपनी बात कहना चाहता है किसी भी तरीके से, क्या हाल है कैसे होता है तो सच के साथ मुझे लगता है सबको खड़े होना चाहिए और सच उजागर होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। और रही बात ये कि आर्ट चीज़ें जिस तरह से निकलती हैं कि आर्ट किस तरह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके बाद बहुत सारी कहानियाँ होती हैं या स्टोरीज़ होती हैं, बेसिकली जो सही नहीं है उसकी ना तो कभी सपोर्ट करनी चाहिए और ना कभी उसके हक में बोलना चाहिए। जो सही है हमेशा उसके साथ, और जो इवन हमारी इंडस्ट्री के लिए सही हमेशा उसके साथ रहे। Namaste everyone. Actually, I was asking Saira, why am I getting this award? Nikila को under 30 में मिला, I'm 45 already. I don't know why I was getting. तो आपको सच्ची मुझे award मिलने वाला है या मैं award देने के लिए यहाँ पर आया हूँ? Because when I heard about you getting the award, but thank you very much for this beautiful token of love from all of you. It's been a very very wonderful life. I'm one of the luckiest guys in the entire world. I've had such a nice career, so much love from people over the years. It's been now 27 years in Mumbai and 26 years of being famous. So it's been a nice life. I've been singing on stage from the age of 4, so it's been 40 plus years of singing on stage, 41 years I should sing on stage. So it's been a very nice journey and I still look forward to music and my life and new things. Thank you so much. और मैं इसके पहले कि आप मुझे कहें मैं खुद कुछ कर देता हूँ।
जब भी मतलब किसी अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है, बहुत ही खुशी होती है, बिल्कुल खुशी होती है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो अवार्ड मिलेगा इस होप से नहीं करते। हम अपना काम करते हैं क्योंकि हमें जो हम करते हैं वो अच्छा लगता है, और उसी में वही काफ़ी खुशी से हम करते हैं। एटलीस्ट आई स्पीक फॉर माई सेल्फ दैट आई रियली एन्जॉय what I do and I do it because of that. तो जब ऐसे सारे अवार्ड्स मिलते जाते हैं तो it's like a pat on a back, you know, it's like a pat on my back, an encouraging pat on my back, and it gives me more strength to keep doing better, और बेहतर काम करने की ताकत मिलती है इससे। तो बस यही लगता है। कारवां के बाद धमाकेदार तो ये हो रहा है कि मेरा जो अगला सीज़न है लिटिल थिंग्स का, जो मैं वेब शो करती हूँ, उसका सेकंड सीज़न नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इट्स गोइंग टू रिलीज एज अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, जो 5 अक्टूबर को हो रहा है। इंशाल्लाह देखेंगे अगर अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेगी वैसे। विधि वाधवानी जी का ये आउटफिट है, श्रीजा राजगोपाल मेरी स्टाइलिस्ट है, तो शी हैज़ पुट टुगेदर दिस लुक। मैंने सुना है, मैंने इनफैक्ट सच बताऊं तो मैं आज ही उसके बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे और भी पढ़ना है टू नो मोर अबाउट इट, क्योंकि मुझे कभी भी हाफ बेक्ड जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे कुछ तो एक ओपिनियन देना चाहिए। मैं बिल्कुल उसमें बिलीव नहीं करती, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम आई थिंक दैट you should speak up. I know it is very hard and I know it can be difficult, but I am just so happy that people are being brave and speaking up. आप एक एक्टर हैं, क्या सेट पर आपके साथ में या जो क्रू मेंबर होता है इस तरह का माहौल कभी होता है आपके? नहीं। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो क्या फीलिंग होती है जब भी आपको इस तरह की आवाज़ से अवार्ड कहीं भी मिले अच्छा लगता है, किसी को भी, चाहे एक्टर हो नॉन एक्टर हो। अवार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके मिलने से इंसान का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। टीवी पे जितने भी अवार्ड्स टेलीकास्ट होते हैं थोड़े डाइसी होते हैं, वो थोड़े डाइसी होते हैं, बहुत कम होते हैं जो बहुत ज़्यादा रियल होते हैं। जो नॉन फिल्मी और जो टेलीकास्ट जो नहीं होते हैं अवार्ड, वो मोस्टली ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, और ये उनमें से एक है। तो अच्छा लगता है कि कोई एक ऐसा सेक्ट है जो आपको रिकग्नाइज करे। नहीं, खुश नहीं, मैं तो वो जस्ट एक टेलीविज़न अवार्ड सेरेमनी जो होती है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए होती है, और वो जो करते हैं वो व्यूअर्स के लिए होता है, तो वो सही कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। अभी कुछ नहीं, जब कुछ होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊँ। मेरा टेक यही है कि जो जिसकी गलती हो वो उसको पनिश होना चाहिए, और क्या। आप जब सेट पर शूटिंग करते हैं क्या आपके अराउंड इस तरह का माहौल होता है? हमारे सेट पे ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसा कोई करेगा तो हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। थैंक यू। फीलिंग तो थोड़ी मुश्किल होती है जाहिर करनी, लेकिन अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्द में करूँ इट फील्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज जनरली हम जो काम कर रहे होते हैं एक धुन में कर रहे होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लोगों से या जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो अपनी जगह होता है, लेकिन जब भी कोई अवार्ड दिया जाता है आई थिंक इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल सकता है कि हम और ज़्यादा बेहतर अपने आप को बनाएं ताकि हम और ज़्यादा अवार्ड्स ले सकें।
अपकमिंग प्रोजेक्ट तो अभी फ़िलहाल मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है जो अक्टूबर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसी को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उस वेब सीरीज़ का नाम है आफत। तो फुल आफत आने वाली है, इज़ व्हाट आई हैव बीन सेइंग। तो सबके फ़ोन्स में आफत आने वाली है। आई थिंक उसको देख के तो सबकी लाइफ में आफत आएगी। नहीं, थ्रिलर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एक्शन नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल सी लड़की की कहानी है, लड़कियों की कहानी है, लेकिन उसी के ज़रिए कैसे आफत आती है, ज़िंदगी की आफत की बात रही है। जी जी मेरा कहना ये है, अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन जब मैं आसपास सुनती हूँ ऐसा, काफ़ी मेरे आसपास लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो मतलब मैं सल्यूट करती हूँ तनुश्री दत्ता को कि शी इज़ कम आउट इन दी ओपन एंड वो बात कर रही है इस बारे में, बिकॉज बहुत ज़रूरी है दैट पीपल स्टेप अप एंड स्टार्ट टॉकिंग। सो आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट हर फॉर दिस एंड आई फील शी शुड बी गिवन जस्टिस। तभी मैं कह रही हूँ, टचवुड में काफ़ी, जितना मेरा 5 साल का एक्टिंग एक्सपीरियंस रहा है, टचवुड में काफ़ी लकी हूँ कि मैंने एज सच देखा नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स बहुत गलत है। थैंक यू। ये बहुत ही ख़ास अवार्ड है क्योंकि जो यंग अचीवर्स या आइकॉनिक अवार्ड्स है उनको एक बहुत ही ख़ास दर्जा दिया जाता है, और टू अचीव दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि हमारे फिल्म अवार्ड्स ये सब तो होते ही हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बाकी भी जैसे NGO से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी अवार्ड किया जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग एन एक्टर और अ सिंगर और सेलिब्रिटी, इट्स बिकॉज वो भी सेलिब्रिटी की तरह ही होते हैं जो कि बहुत ही मतलब आम होते हैं पर बहुत ही ख़ास काम करते हैं, एंड दे आर ग्रेट सोशल वर्कर्स। या हाँ जी, मैं एक काम करने वाली हूँ प्रकाश झा के साथ। I'll tell you मैं अभी कमिट नहीं कर सकती, पर तब मैं आपसे बोल सकती हूँ कि उनके साथ ही है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और तेलुगु फिल्म्स चल रहे हैं और कुछ बंगाली फिल्म्स चल रहे हैं। इतना मैं अभी कमिट नहीं कर सकती क्योंकि, पर आपको पता है सर का जो स्टाइल है वो बहुत ही, उनका यूजुअली पॉलिटिकल ड्रामा या फिर कुछ बहुत ही यूनिक स्क्रिप्ट होता है उनका, तो मैं फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी। करेक्ट। देखिए, हम जिस फील्ड में यहाँ पे कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं, पर मुझे नहीं लगता हमें इनको ज़्यादा हवा देनी चाहिए, एंड ये सबकी पर्सनल लाइफ है, सो आई वुड लाइक टू स्टे प्रीटी न्यूट्रल अबाउट इट एंड नॉट कमेंट। मैंने फ़िलहाल तो फेस नहीं किया है, तो आई होप आई डोंट, एंड ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट कि लोग भी यू नो दे पुट अ चेक ऑन दिस, बेसिकली दैट्स माई ओनली मैसेज। थैंक यू। Thank you so much. देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मुझे फ़ोन आया कि वो मुझे ये अवार्ड देना चाहते हैं अचीवर्स का, तो क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे नहीं लगता मैंने कुछ अचीव किया अभी तक। मुझे तो लगता है अभी ज़िंदगी बाकी है, अभी कर रहे हैं, और मेरा हमेशा गोल ये रहता है कि आप इम्प्रूव करते रहें। आप जितना आप अच्छा, मतलब मेरा काम है, मैं एक्टर हूँ, डायरेक्शन भी की है मैंने, तो एज एन एक्टर ऊपर वाले ने जो मुझे देन दी है उसको मैं जस्टिस कर सकूँ।
अपना 100%, क्योंकि हमेशा होता है अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो हमेशा कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है। आप अपना सीन देखते हैं यार ऐसा कर सकता था या ऐसा कर सकिए, ऐसा नहीं किया। तो मैंने अचीवमेंट्स के बारे में कभी इतना सोचा नहीं है। मेरा हमेशा होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ और अचीवमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता कि अगर आप खुश ना हो। तो जब ये मिला तो मुझे थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, मगर मैं मतलब ऑनेस्टली बहुत ही हम्बल्ड हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मुझे लगता है मुझसे कहीं ज़्यादा लोग हैं जो उन्होंने ज़्यादा अचीव किया है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि इस लायक सोचा एंड अपनी बेटी को ये दिखाऊंगा। ये बहुत ही आई थिंक आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई थिंक ऊपर वाला मेहरबान था मुझ पे आज। तो उन्होंने कहा जन्मदिन की तरफ, ये ऊपर वाले की तरफ से एक ट्रॉफी मिल गई मुझे एंड आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, नेवर एवर। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे। सबने जो थे गाना भी गाया मेरे लिए एंड आई एम हम्बल्ड। मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि इतने सब लोग जो इतने सब अचीवमेंट्स उन्होंने किया है, उन्होंने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाया, मुझे अवार्ड मिला, इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। सो ट्रूली दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा इन लोगों का, अपने ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने मौका दिया। अब उनको किसने बताया ये मुझे मालूम नहीं कि मेरा बर्थडे है, तो आई एम वेरी विल बी द बेस्ट बर्थडे ऑफ माई लाइफ। अपकमिंग अभी फ़िलहाल मैं शूटिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की, वो चल रहा है। एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ पंचबीट के लिए, पंचबीट जो ऑल्ट बालाजी के लिए है। और एक और वेब सीरीज़ है जिसका नाम फैमिली है। मैं 2 फिल्म्स कंप्लीट कर चुका हूँ। एक का नाम है रफ्तार और एक का नाम है टेप, जो हॉरर फिल्म है। तो ये रिलीज़ पे हैं और अभी देखते हैं। देखिए मुझे कई लोगों ने पूछा, मगर सिंपल बात है ना, मैंने तनुश्री के साथ काम किया है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले आगे आके कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, मगर मेरा ये मानना है, मुझे कई न्यूज़ चैनल्स ने बुलाया था, मगर ना ही मैं नाना जी के साथ मैंने काम किया है, ना मैंने तनुश्री के साथ काम किया है, ना उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो बिना जाने पहचाने दोनों का जो पर्सनल इशू है उसमें घुसना मुझे ठीक नहीं लगता है, शोभा नहीं देता अगर मैं किसी साइड लेता नहीं लेता। तो अब मुझे ऑनेस्टली पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि उससे वो ही जानते हैं और ना उनको मैं पर्सनली भी नहीं जानता हूँ। जैसे बीच में जब सलमान का हुआ था तो मैं सलमान को पर्सनली जानता हूँ और मैं तो बात की थी मैंने उनके बारे में, तो इनके बारे में जानता नहीं हूँ। आई एम वेरी सॉरी। अगर मुझे पता होता क्या डिटेल्स हैं क्या नहीं है, या इनको पर्सनली जानता तो मैं ज़रूर उनके बारे में एक टिप्पणी रखता। फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है और इतना मोटिवेशन मिलता है आपको कि ठीक है, हम जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको फल भी मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जो लोग मेरे सामने बैठे होते हैं वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो उनको देखकर मैं इंस्पायर होती हूँ और उनके सामने जो अवार्ड उनको मिल रहा है वो अवार्ड मुझे मिल रहा है। तो आई फील वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स आई जस्ट फील लाइक दिस इज़ सो अनबिलीवेबल फॉर मी। जिनकी मैं खुद फ़ैन हूँ उनके सामने मुझे अवार्ड मिल रहा है या वो लोग मुझे अवार्ड दे रहे हैं, तो आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी हैप्पी। एंड यंग का अवार्ड है, इसमें मैं जानना चाहूँगी इतनी छोटी सी यंग एज में क्या कुछ भी में आपके, क्योंकि हम पता है सोशल मीडिया में आपकी पॉपुलैरिटी बहुत सारी है, आप एक भी पोस्ट करते हैं तो बहुत सारे लाइक्स एंड व्यू आते हैं। ऐसे यंग थॉट है आपके? मेरे यंग थॉट यही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये अच्छी, मुझे लोगों ने बहुत अच्छी पावर दे दी है कि वो मुझे फॉलो करते हैं, जो चीज़ मैं करती हूँ वो करते हैं, तो मैं इसे
एक अच्छी चीज़ मैं यूज़ करना चाहती हूँ कि मैं अच्छी तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलाऊँ और उन्हें मोटिवेट कर सकूँ, उन्हें इंस्पायर कर सकूँ एक अच्छे वे में, एक बेटर इंसान बनने के लिए और एक अच्छे सिटीज़न बनने के लिए। लड़कियों को मैं प्रोत्साहित कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ अच्छा काम करने के लिए, फाइट बैक करने के लिए लोगों से। सो आई थिंक मैं इसको, इस प्लेटफॉर्म को जो मुझे मिला है लकीली, मैं उसको एक अच्छी तरह से यूज़ करना चाहती हूँ जिससे लोग इंस्पायर हों और जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जी आपको बिल्कुल मिलेंगे। समीर जी यहीं पर थे, हमने एक फ़िल्म की है साथ में जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, वो जल्दी रिलीज़ होने वाली है और मेरी 2 एल्बम्स रिलीज़ होने वाली हैं, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। और एल्बम यस, तो यस आपको देखने को मिलेंगे। तो आशिकी तो आप देख ही रहे हैं। ये कैरेक्टर, ये एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म थी जो हमने की थी, जिसमें समीर जी की बेटी मैं बनी थी और वो कोच बने हुए हैं। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी फिल्म है, जब रिलीज़ होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने नहीं सुना। देखिए, सुनना, सिर्फ चीज़ को एक सुन लेना और वो चीज़ है या नहीं उस पर विश्वास करने में बहुत अंतर होता है। और मैं वैसी नहीं हूँ कि अगर मैंने एक एंड से कोई बात सुन ली तो मैं उस पर आराम से विश्वास कर सकूँ। एक तो मुझे पता नहीं था ये न्यूज़ के बारे में, आपने मुझे अभी बताया। लेकिन ये थोड़ा अजीब सुनने में लगा मुझे कि सेट पर एक्टर्स को मारते पीटते हैं। जिस तरीके का हमारे सेट पे या कोई भी शूट पे माहौल होता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी आज के ज़माने। बट अगर उन्होंने बोला है तो कुछ बात रही होगी, बट क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके बारे में तो मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। थैंक यू। आपके मॉम डैड सभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुशी होती है जब आपके पेरेंट्स को आप प्राउड करते हो और उन्हें खुशी होती है तो क्योंकि जितना हार्डवर्क मैं करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो लोग करते हैं मेरे साथ। तो अवार्ड तो मैं रिसीव करती हूँ, लेकिन असली अवार्ड के हकदार तो वही हैं।